Good evening. Hello. Good evening, Good sir. evening. Is it audible to all? Good evening, sir. Good Yes, sir. evening, sir. Yes, sir. The sharing screen will be visible to all. Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So today will be discussion about the types of communication, and next will be discussion of form of communication. What are the workplace will be execute that type of communication. Then it is going for the related to the electronics device and e-business application. If it possible, then we are cover the this short business corresponding and long business corresponding, long business or short business corresponding, how you present your report. Okay. So we'll start from the type of communication. So we know the basically the type of communication is very two types. One is the verbal communication, another is the non-verbal communication. In that case of verbal communication, there have some rules and regulation. They have some via medium also. But non-verbal communication, they have no rules. Okay, they have no rules to find out the communicate non-verbal communication. Only the verbal communication they have a rules. Okay, so just look at this diagram. Sorry, this verbal communication. That verbal communication having that means some speaking to someone else, but one-to-one communication. Otherwise any personal interview like any conference, video conference, or any sender to receiver any data, one-to-one or one-to-many, where the via medium also are using it, but there will be a proper channel. A proper channel we're using this verbal communication. The basically that channel is there to divide into two things, that is oral communication and written communication. In case of oral communication, we are using that maybe telephonic conferencing, but telephones, or any video conferencing, uh, otherwise eye contact, sorry, eye contact, sorry, person to person communication, one to one communication. In written communication, you can using any letters, like emails, or applications, or any other things, what are the written in written manner. Okay. In that case of oral communication and written communication, there is a difference. But the difference is between them oral and written communication. Orally means you have to speak to someone. They have speaking. Suppose you present the presentation. Suppose you are moving to presentation skills. तो पर्टिकुलर थिंग में क्या होता है, आप लोग प्रेजेंट कर रहे हो कुछ टॉपिक के बारे में. अगर मैं टॉपिक के बारे में प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास 10 स्लाइड है. सपोज मैं 10 स्लाइड को एलाबोरेटिंग कर रहा हूँ. ओरल कम्युनिकेशन में कुछ यहाँ से स्लाइड में कुछ होगा, मैं उसको एलाबोरेटिंग कर रहा हूँ जो मेरे स्लाइड में नहीं होगा. वो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, आपको रिटन करना. अगर ये हैव प्रॉपर रिटन रहेगा तो आपको पूरी अच्छी तरीके से पता चल सकता है पर्टिकुलर पॉइंट बाय पॉइंट क्या हो रहा है. बट इंस्टेड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, योर प्रेजेंटेशन स्किल, जो प्रेजेंट आप स्लाइड बनाए हो, उसमें आपको डिटेल्स टेक्सचर व ग्राफिकली ज़्यादा पता चलेगा उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में. दोनों में वाइस वर्सा होना चाहिए और दोनों में भी लैक होना है. Fine. So most of the common things in your oral communication, we are using this personal and professionally with using your oral communication. As usual, also we are using written communication. Fine. So in that cases of non-verbal cases and your verbal cases, they have some rules and regulation. But in non-verbal cases, there is no oral communication, no written communication. The communication is means they have a using some symbolization. हम सिंबल यूज करते हैं, कुछ सिंबल कुछ यूज करते हैं. अदरवाइज हम लोग आई कांटेक्ट करते हैं. फाइन. सिंबलाइजेशन मीन्स आपको एग्जांपल देता हूँ. आप दुकान पे कभी भी जाते हो, चाय के दुकान पे जाते हो, तो चाय के दुकान पे कि कोई भी ग्लोसरी के दुकान पे जाते हो, आप इस तरह से बोलते हो भैया मुझे वो दे दो.
अदरवाइज चाय की दुकान में आपको बोलना नहीं पड़ता है, जस्ट गिवन इज टू भैया 2 कप, बस दिखा देना उंगली में, वो समझ जाएगा इसको 2 कप चाय चाहिए। दैट इज अ जनरल कॉमन एग्जाम्पल टू ऑल। सो नॉन वर्बल में आप लोगों का सिंबलाइजेशन यूज होता है। हर रास्ते पे आप चेक कर सकते हो, जैसे भी हाईवे में आपका सब सिंबलाइजेशन नोटिफिकेशन होगा, ये यू टर्न्स कहाँ पे आपका होम से वो बैरियर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आपको डाइवर्शन लेना है, सब जगह पे आपका नोटिफिकेशन लगता है, वहां पे सिंबलाइजेशन नोटिफिकेशन हो। सो so it will be also one of the part of communication to person, or you have to find out that your texture, you are find out also graphical notation, better understanding for that than verbal communication. Yes, maybe नो बदर अबाउट डाउट। जब वर्बल कम्युनिकेशन हर वक्त आपको ओरल एंड रीडिंग में चाहिए, आप उसको नॉन वर्बल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे एक चाहिए फ्लो डायग्राम चाहिए, मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, सपोज आई एम फाइंडिंग दैट प्राइम नंबर का मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। अगर फ्लो चार्ट में आप उसको समझ में आता है, वो फिगर आउट कर सकते हो, तो बेटर है। मेरे को ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन भी नहीं चाहिए। तो दोनों कंसेप्ट में, दोनों कम्युनिकेशन कंसेप्ट में इट शुड बी मैंडेटरी टू बी रिक्वायर्ड, बट विथ द रिक्वायरमेंट दैट द रिक्वायरमेंट इज डिपेंड ऑन देन देयर प्रॉब्लम एंड देयर स्टेटमेंट। आपको प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, उसी के हिसाब से आप लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो। तो ये यहाँ पे दो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखा गया है। अगर एक केसेस में एनालिसिस करता हूँ, दिस केसेस literacy literacy of a language is not essential comprehending to non-verbal signal and symbolization। obviously जो पर्सन लिटरेस मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एडवांटेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उनको लिखना जरूरत कुछ नहीं पड़ेगा, वो रिटन पेपर में नहीं है, वो आई कांटेक्ट से कोई सिंबलाइजेशन यूज करके वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दैट्स द मोस्ट एडवांटेजेस। But in that time have also have a they have in disadvantages, that particular cases, that means here written is a people need to be learn meaning of particular sign। वो मुझे particular sign मुझे पता होना चाहिए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एक सिंबलाइजेशन नोटेशन कर रहा हूँ। ये सिंबल आप बता सकते हो क्या है? डॉलर। डॉलर है। हमको ये डॉलर सिंबल क्या इंडिकेट करता है? इट इज ए वन करेंसी इंडिकेट करता है मेरे को, यस और नो? डॉलर सिंबल करेंसी इंडिकेट करता है। अगर मैं ये पर्टिकुलर डॉलर सिंबल मैं कंप्यूटर साइंस को रिलेटेड करता हूं, तो इसका मीनिंग बहुत ही अलग होगा। इसको हम लोग एंड मार्कर में भी यूज करते हैं, एंड मार्कर। इसी जगह पे हम लोग इसको भी इंडिकेट करते हैं, मेरा एम्प्टी ऑफ स्टॉक। मैं आपको का पूरा टर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। एम्प्टी ऑफ स्टॉक, मैं स्टॉक के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। फाइन। हर फील्ड में इसका मीनिंग अलग है। जैसे आपको एक बात बता रहा हूँ, ये सिंबलाइजेशन आपको क्या इंडिकेट करता है, बता सकते हो? अगर मैं ए सिंबलाइजेशन को पकड़ के देता हूँ, सपोज आई एम जस्ट चेंजिंग द कॉल दिस सिंबलाइजेशन, मुझे ए सिंबलाइजेशन की मैं बता सकते हो, दिस हाफ सर्कल। हाफ सर्कल हो सकता है कॉपीराइट कॉपीराइट, तो ये होता है ना। मैं जस्ट मीनिंग कर रहा हूँ, जस्ट दिस सिंबल हाफ सर्कल, लेटर सी, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर सी, ये इंडिकेट करता है इंग्लिश अल्फाबेट लेटर सी। अगर मैं इसको रिलेटेड करता हूं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, ये इसका अलग मीनिंग होगा। तो हर केसेस में आप लोगों का सिंबलाइजेशन अलग होता है, उसका पर्टिकुलर मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं मैथमेटिक्स में रिलेटेड करता हूं, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए डॉट बी, ये डॉट क्या डिफाइन करता है? अगर मैथमेटिक्स के अंदर जाता हूं, तो ये डॉट मुझे ऑपरेटर के हिसाब से डिफाइन करता है। ये ऑपरेटर क्या ऑपरेटर है वो मुझे पता नहीं।
ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, अगर मैं डॉट ऑपरेटर को डिफाइन नहीं कर रहा। अगर मैं किसी बंदे को पूछूंगा ए डॉट बी लिखा है, तो वो समझेगा क्या सर ये ए मल्टीप्लाई बी ही लिखा है। तो डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन इट विल बी वेरी। सो हमारे व्हेन आई एम यूजिंग एनी सिंबलाइजेशन नोटेशन, तो मुझे उसको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, ये सिंबलाइजेशन इसी के कारण के लिए यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक फिगर आउट है, ये वाला फिगर आउट ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग यूज करते हैं यू टर्न के लिए, ये स्पेसिफाइड हुआ है, ठीक है, फाइन। ये नॉर्मल नॉर्मल में ये एक लिटरेसी पर्सन के लिए बेटर तो हो रहा है, बट हर पर्सन के लिए बेटर नहीं होगा पर्टिकुलर साइन के लिए, इसलिए एग्जांपल दिया गया है ट्रैफिक साइन के लिए, फाइन। और एक बात यहाँ पे आ रहा है, जैसे ए वेरी लार्ज डेटा सेट कैन बी प्रेजेंट थ्रू ग्राफ एंड चार्ट। आपको बहुत सारा डेटा दिया गया है, आपको ग्राफ और चार्ट बनाने के लिए आप जो भी चार्ट बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, लाइन बार बना सकते हो, ग्राफ, ढेरों सारा ग्राफ है आपके पास, आप डेटा कलेक्ट करोगे, उसको एक्स एंड वाई एक्सिस में डाल के आपको फाइंड आउट कर लोगे ग्राफ, ये आपको पता है। दिस इज अ वेरी एडवांटेजेस in that cases of non-verbal communication. But one thing that suppose that making of interpreting this graph chart require the professional training. Yes, आपको पता होगा तो आप लोग ड्रॉ करोगे ना। अगर मुझे एक्सेल में फॉर्मेट में मुझे ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अगर सिंपल सा बंदा होगा तो मैं जस्ट लाइन में ड्रॉ कर लूंगा एक्स एंड वाई एक्सिस, जितना भी डेटा मुझे पता होगा। मगर मैं डेटा का लार्ज नंबर ऑफ डेटा अगर मेरे पास होगा, वो मुझे पता नहीं कितना नंबर ऑफ डेटा, एन नंबर ऑफ डेटा है मेरे पास। जैसे हमारे ग्राफ में आता है, सैटेलाइट का ग्राफ में आता है, इट्स बी डिफरेंट 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 हर केसेस में, नॉर्मल केसेस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा उस टाइम, फाइन। So these are the advantages and disadvantages in that cases will be defined. The most commonly advantage is that it is a one-way communication that will be defined one person or large number of the person. So it is quickly to be understanding that. Then case of non-verbal cases, disadvantage यही रहेगा, it is a one-way communication. ये communication हर वक्त one way ही रहता है, two way नहीं है। जिसको पता है वो यूज कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, जिसको पता नहीं होगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। दिस इज अ वन वे, फाइन। सो this is the advantage and disadvantage of this non-verbal communication. So we are just finding some one or two more lacuna here, but we are understanding that is where the symbolization will be, where notation will be used, it should be specified it. So in that case of that non-verbal communication, what are the communication methods we are using that? That method will be using that is posture, gesture, facial expression, eye contact, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन जो फिजिकल अपीयरेंस में आप प्रेजेंट कर सकते हो अगर, फाइन, कोई भी डेटा, फाइन। तो दीज आर द मेथड टू डिफाइन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, फाइन। मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं इस तरह से, उनको लिखाई अच्छा नहीं लगता है, वो इतना लिखना पसंद नहीं करते, तो हम लोग बोलते हैं ना एग्जाम के टाइम में रट्टा मार के पढ़ते हैं, वो पॉसिबिलिटी उनको अच्छा नहीं लगता। वो क्या करते हैं, एक अपने आप से ग्राफ बना देते हैं, उसको जितना समझ में आया उसको ही एक्सप्लेन करवा देंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। तो डिपेंड करता है, इट विल बी पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू और अदर पर्सन, दैट शुड बी वेरी टू ऑल्स, fine. It will be vary to alls, fine. So in that cases we are just understanding that points, my communication skill, it will be divided into verbal communication and non-verbal communication, fine. That verbal communication is type is oral and written, and non-verbal communication is posture, eye contact, your, and there is a symbolization, notation, okay, physical appearance, that will be type of non-verbal communication. Now my question is that, next,
how, where that workplace we are using this verbal and non-verbal communication. How I can identify that. That is in the next modules, that this is the form of communication at workplace. So in that cases, previous cases were defined, communication will be divided, this verbal and non-verbal. फाइन, अगर वर्माल में डिफाइन हो रहा है ओरल एंड रिटिन, सो इसमें अगर रिटिन के लिए हम जा रहे हैं, अगर मैं कोई मेल लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ईमेल्स लिख रहा हूँ, तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है. अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा. ये आप लोगों को पता है, लेटर लिखने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ईमेल में भी किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है आप लोगों के पास, आपको पता हो. फाइन. तो अगर इसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट है, तो ये कौन से कम्युनिकेशन में जाएगा? ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में जाएगा. ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका सारे रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा. दे हैव ए फॉर्मेट्स, दे हैव रूल्स. ओके. सो बट नॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा? आपको कोई तो रूल रेगुलेशन नहीं है, वो इनफॉर्मल में चला जाएगा. फाइन. So in that cases where we are doing this workplace, we are finding that workplace condition, we are indicate that formal communication and informal communication. We are finding that formal and informal. Then I am check for that what are the conflict arises and crisis communication. वो बाद में हम लोग चेक करेंगे. पहले हम लोग चेक करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में क्या क्या होता है. जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये आपका फिगर आउट डायग्राम. इसमें क्या लिखा गया है? फॉर्मल को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है. एक में वर्टिकल, एक में हॉरिजॉन्टल, एक में डायगोनल. जो डायगोनल बुक है, किस बुक्स में वहां पे लिखा होगा क्रॉस. क्रॉस क्योंकि डायगोनल है ना, क्रॉस. दिस इज द क्रॉस. फाइन. तो वर्टिकल को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल मतलब आपका इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल रहेगा. वर्टिकल मतलब आपका इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल रहेगा. तो एक में अप रहेगा, एक में डाउन रहेगा. दैट्स व्हाई इट विल बी डिवाइडेड इन अप एंड डाउन. फाइन. सो हम लोग चेक करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है. हम लोग को फिर से चेक करना पड़ेगा. तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एम्प्लॉय के बारे में ले रहा हूँ. जस्ट हम एम्प्लॉय ले रहा हूँ. तो एम्प्लॉय में क्या होता है, सपोज दिस इज द वन एम्प्लॉय, this is the another employee. Okay, this is another employee. Suppose they are connecting to each other. I'm just connecting to each other. Fine, they are connecting to each other. So मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मैं 1 के साथ 2 कनेक्ट कर रहा हूँ, व 1 के साथ 3 कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर 4 के साथ भी कनेक्ट 2 एंड 3 हो रहा है, तो ये 4 और 1 का तो कम्युनिकेशन रहेगा. अगर 1 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, 1 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और दोनों 4 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इट शुड बी गोइंग फॉर दैट 4 1 1 के साथ 4 का कम्युनिकेशन रहेगा. फाइन. तो इस जगह पे क्या होगा, वी आर यूजिंग दैट डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. इसको हम बोलते हैं सुपीरियर. ये द सुपीरियर, दीज आर सबऑर्डिनेट्स. दीज आर द सबऑर्डिनेट्स. इस डायग्राम में, this is the diagram. This is the superior one, this is the subordinate one. That means when superior send some messages to subordinate, that is the downward. आपको हाई एम्प्लॉय, आपका मैनेजर से आपको कुछ इंफॉर्मेशन पास हो रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा है काम के लिए, तो वो आपको नीचे वाला लेवल के ऊपर एम्प्लॉय के ऊपर जाएगा, तो वो नीचे वाला एम्प्लॉय से डाउनवर्ड आएगा इंफॉर्मेशन. फाइन. अगर आपसे काम खत्म होने के बाद वही काम आपको बस वहां पे रिटर्न जा रहा है, फाइन, तो वो आपके लिए ऑफवर्ड रहेगा. दिस इज द टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोचेस. दैट इज द ऑफवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर द वर्टिकल कम्युनिकेशन. दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी फिर से एक बार चेक कर सकते हैं. इसमें पहला डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे लिखा है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. मैं पहले आपको बता सकता हूँ, एंड दैट इज द सबऑर्डिनेट लेवल एंड सुपीरियर. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी सुपीरियर एंड से आएगा वो लोग एक्सपर्टाइजेशन होंगे उस काम के लिए. यहाँ पे जो होंगे वो एक्सपर्टाइजेशन किसके काम से होगा, वो पर्टिकुलर वर्क के लिए होंगे. जैसे मैं एक कंपनी में भेज रहा हूँ, सपोज एक कंपनी में एनालिसिस कर रहा हूँ,
जैसे मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल में जा, फाइन। शॉपिंग मॉल में क्या होता है, वहाँ पे कुछ ग्लोसरी आइटम होता है, कुछ वेजिटेबल आइटम्स होता है। जो सेल्स मैनेजर होंगे वो वेजिटेबल के लिए कुछ होंगे और ग्लोसरी के लिए भी। बट मैनेजर क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है दोनों के लिए, ग्लोसरी के भी देता है, वेजिटेबल भी देता है। बट वेजिटेबल वाला जो भी सेल्स मैनेजर है वो ग्लोसरी वाला आइटम बेच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है। ये अलग बात है उनका आइडिया स्किल क्या है, बट दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट। ओके, जो ऊपर सुपीरियर होगा वो एक्सपेक्टेशन लेवल में होगा, तो वहां से एक्सपेक्टेशन लेवल में मैसेजेस आएगा योर सबऑर्डिनेटर लेवल के ऊपर। वो लेवल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 लेवल हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जब यहां से वो लोग जाएंगे, वो यहाँ पे लिखा है डू नॉट नीड टू एक्सपेक्टेशन टू एनी अथॉरिटी। मुझे अथॉरिटी के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, बस मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में और पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। दैट इज माई वर्क एंड दैट इज माई एक्सपीरियंस, दैट इज माई एक्सपीरियंस एंड दैट इज माई स्पेशलाइजेशन टू कंप्लीट द होल थिंग्स। Fine. So in that cases, maybe somehow some cases maybe we think that superior से अगर सॉफ्टवेयर कोई डेटा अगर आता है, उसका फ्लो ऑफ केसेस कैसे रहेगा, जिसे हमको डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी में। ओके, फ्रीक्वेंसी में अगर डिफाइन करेंगे तो वो हाई ऑब्वियसली रहेगा। आपके एंड से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लेवल्स में जब जाएगा वो ऑब्वियसली लो ही रहेगा। दैट इज द डिफाइन, दैट इज द मेन पॉइंट डिफाइन इज स्ट्रेस। एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस रहता है मैनेजर से, थोड़ा ना स्ट्रेस इतना रहता है। वो डिपेंड करता है वर्क लेवल के ऊपर। फाइन, that's a joke apart, that will be defined. Okay, so in that cases we are defined that upward and downward vertical communication that will be defined superior to subordinator and subordinate to the superior। ये दोनों केसेस में हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन का कंप्लीट हो रहा है। फाइन, तो बाकी क्या बचा मेरा अभी, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये कौन सा कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में क्या होगा आपका, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खड़ा है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग मैनेजर connecting with sales manager, also sales manager connecting with also purchase manager, purchase manager also connecting with the finance manager। बट एक केसेस में और दो केसेस में क्या हुआ है, यहाँ पे लेके यहाँ तक, मतलब फर्स्ट लेके थर्ड तक अगर मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ, मतलब मार्केटिंग मैनेजर से लेके परचेस मैनेजर तक एक कम्युनिकेशन हो रहा है, वो डायरेक्टली हो रहा है। डायरेक्टली वहां पे सेल्स मैनेजर को अवॉइड कर, और एक सेल्स मैनेजर से फाइनेंस मैनेजर तक एक तुम्हारा एक कम्युनिकेशन है रहा है, वहां पे परचेस मैनेजर हिडन है। मतलब यू हैव टू बी जंप। तो मार्केटिंग मैनेजर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है सेल्स मैनेजर को, जंप करके वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है परचेस मैनेजर के साथ, एंड सेल्स मैनेजर ऑल्सो भी डायरेक्टली कांटेक्ट विद द फाइनेंस मैनेजर। जैसे चारों केस मैनेजर में आपका कोऑर्डिनेट है, फिर भी ये फर्स्ट से थर्ड एंड सेकंड से फोर्थ का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, मे बी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देम। That's why it will be written in that this form of communication will be take place between two or more employee at same level। That means कोई एक सेम लेवल में काम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन कोई सेम लेवल में काम कर रहे हैं, वी हैव टू गो फॉर दैट। मे बी मैं उसको स्विच ओवर करके अनदर पर्सन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। फाइन, दैट इज द कम्युनिकेशन विल बी डिफाइंड टू बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फाइन, यहाँ पे लिखा गया आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, आपका सेम डिपार्टमेंट भी हो सकता है। Fine. So in that cases, that is the email one to email one to define that point. The define that point is horizontal communication in this way. That means यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग, एक एक ईमेल वन यहाँ पे लिखा है, एक ईमेल टू लिखा है। यहाँ पे दोनों में अलग क्या हो रहा है, मतलब दोनों में अलग हो रहा है, मार्केटिंग मैनेजर सपोज परचेस मैनेजर को लिख रहा है, सपोज आई एम डिफाइन सेल्स मैनेजर को फाइनेंस लिख रहा है। दोनों केसेस में ईमेल हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर रिटन दैट जस्ट I am writing this email in the response for a job advertisement posted on your website। I meet the essential eligibility criteria, have the desired experience for find out my CV। Okay, that means मैं यहाँ पे बोल रहा था जो फर्स्ट वन थर्ड वन की डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन से फोर्थ वन को डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो आपको जब लेटर राइटिंग रहेगा,
लेटर राइटिंग सपोज आपके जॉब के लिए रह रहा है, तो वहां पे हर कैंडिडेट का लेटर राइटिंग डिफरेंट होगा आपका सेम जॉब, जस्ट टेक्सचर ऑफ राइटिंग। मेल तो अटैच है बट जस्ट राइटिंग हमें आई एम जस्ट राइटिंग फॉर ईमेल फॉर रिस्पॉन्सिव जॉब एडवर्टाइजमेंट में आपका निकला है, मैं आपको एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो मैं आपका सीवी में आके अटैच करके भेजा, प्लीज काइंडली फाइंड आउट दैट। फाइन, in that place also same thing it will be written that, but different format maybe written is very different, but object performance is the same thing, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, दोनों केसेस में अलग है यहाँ पे, दोनों केसेस में यहाँ पे अलग है। So in that case, I am deciding that this formal communication at workplace to different person it will be vary, but they are follow their communicational methods. Their communication methods that may be formal or informal. If we are doing as a formal, so we are follow the three communication methods: vertical, horizontal, and diagonals. Now I am coming from this diagonals. So diagonals will be defined in this way. मैं यहाँ पे आता हूँ आपके लिए बस ये ऊपर just this is the diagonal or crosswise, this is the crosswise, just check it here। in that case यहाँ पे सीईओ बैठा है, यहाँ पे सब प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर बैठे हैं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग हो रहा है। सपोज प्रोडक्ट बी का मार्केटिंग सेल्स के लिए डायरेक्ट कंटेक्ट हो रहा है एंड सेल्स के लिए डायरेक्ट हम कंटेक्ट कर सकते हैं सीईओ के लिए, तो मुझे एब्सेंट रखना पड़ता है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, directly I am contacted। Fine, that means in that particular case of that formal communication, it works as a crosswise departmental or hierarchical model। डिपार्टमेंटल एंड हायरार्किकल मॉडल एट द सेम लेवल हो सकता है और डिफरेंट लेवल में, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो भी आपका डिफाइन होगा वहां पे वो आपका कम्युनिकेशन रहेगा। मतलब सीईओ में क्या हो रहा है, अगर वो प्रोडक्शन को कुछ डेटा दे रहा है, मार्केटिंग को वही डेटा देगा, सेल्स को भी वो डेटा, बट वो एब्सेंट करके डायरेक्टली प्रोडक्शन को डेटा दे के प्रोडक्ट लॉन्च भी कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट विल बी डिपेंड ऑन दैट कम्युनिकेशन मेथड्स। So in that case, one advantage is that fastest and efficient mode of communication, यहाँ पे आपका fastest mode communication रहेगा, but in case of that the fastest communication, only one disadvantage that is the bypass to authority। आप bypass कर रहे हो वहां पे, यहाँ पे create होता है ego create होता है, egoless person, ईगो केस इन द ऑर्गेनाइजेशन मोड, आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अगर टॉपिक होगा आप लोग पढ़ सकते हो। ईगो, यहाँ पे ईगो स्टार्ट हो सकता है, वो डिपार्टमेंट मुझे इन्फॉर्म ना करके वो डायरेक्टली प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं, वो उसको डेटा दे सकता है भी नहीं दे सकता, कोई हार्मफुल नहीं होगा, बट प्रोडक्ट लॉन्च हो गया उस विदाउट देयर नॉलेज, तो वहां पे ईगो क्रिएट हो सकता है। दैट इज द ईगो बाईपास टू अथॉरिटी to may have not any idea about that particular section of action। Fine, so in that cases अगर मेरा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन रहेगा तो मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा फॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो इन दैट फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर डायरेक्ट रह रहा है मेरा, सो मेरा चेन कमांड टेक प्लेस भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, मेरा जो भी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी आएगा। मतलब समझ लो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट भी सेल्स को कंटेक्ट कर रहे हैं तो मार्केटिंग वाला प्रोडक्ट भी के लिए एनी पॉइंटेड फाइंड आउट नहीं करें कहाँ पे लैकुना आ रहा है, कहाँ पे प्रोडक्ट काम नहीं हो रहा है, वो मार्केटिंग नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो डायरेक्टली सेल्स को कनेक्ट कर रहा है। ये एक डिसएडवांटेज वहां पे आ सकता है। फाइन, तो हर कम्युनिकेशन स्किल में, हर कम्युनिकेशन मेथड्स में आप लोगों का डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस रहेगा दोनों केसेस में। जैसे हॉरिजॉन्टल केसेस में भी है, यहाँ पे अगर मैं फैसिलिटी टू कोऑर्डिनेट एम्प्लॉय टू सेम लेवल और डिफरेंट लेवल में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो ये मेरा बेस्ट प्रैक्टिस होगा। ठीक है, बट इन दैट केसेस दे हैव सम सीनियर मैनेजमेंट टीम रिमेन ऑन ऑन यूनिफॉर्म दैट प्रोसीडिंग दिस डिपार्टमेंट। अगर आपके लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में व डिफरेंट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में कोई भी सीनियर होगा, वो उसके वहां पे भी ईगो क्रिएट हो सकता है।
दैट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल। हर केसेस में आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, हर केसेस में आपको उसका डीमोटिवेशन रिजल्ट भी मिलेगा, बट इट विल बी communicational methods we are using that in business communication. Fine. Now it will comes as a informal communication. So informal communication, they have a number of rules, so we are using that, like single strand chain structure हम use कर सकते हैं वहाँ पे। फाइन। अदरवाइज हम लोग गॉसिपिक चेन यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मल रूल है ही नहीं, फॉर्मल रूल है। सिंगल स्ट्रैंड चेन स्ट्रक्चर में सी डी को डेटा दे रहा है, बट ए सी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ए डी के साथ भी कोई रिलेटेड नहीं हो रहा है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया गया है, फिर से डी को डेटा जा रहा है वाई के तरीके से, यहाँ पे एक सिंगल चेन है वहां। बट इस केसेस में जब हॉरिजॉन्टल केसेस था, मैं ए को सी को कनेक्ट कर सकता हूँ, बी को भी डी को कनेक्ट कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। बट डायगोनल केसेस में ए को सी के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, डी के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वहां पे फास्टेड हो रहा था एग्जीक्यूशन मेथड्स, बट यहाँ पे प्रोसेस इतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल चेन कनेक्टिंग दैट मेंबर, वन मेंबर दैट लाइन और ग्रुप ऑफ मेंबर टू कनेक्टिंग टू अनदर, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। फाइन। जैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो, कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो, सब पहले फॉर्म में आपका डिटेल्स दोगे, पर्सनल डिटेल, उसके बाद एजुकेशनल, उसके बाद पेमेंट, तो एक का कंप्लीट करोगे तो दूसरा ओपन होगा। ये नहीं कि पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप कर लेता हूँ, बाद में पर्सनल डिटेल फिलअप करूंगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट इज द इनफॉर्मल, दैट the single stage, then will be gossiping that will be no centralization किस, ए सी को डेटा दे रहा है, ए बी को डेटा दे रहा है, वाई को डेटा दे रहा है, डी को, कोई फिक्स्ड नहीं है कि कौन किसको डेटा दे रहा है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। दैट इज अ प्योरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, योर ग्रुप डिस्कशन। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ चेन में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। ए में क्या हो रहा है, ये कनेक्टेड है सी के साथ, देन सी कनेक्टेड है एच के साथ, सी ऑल्सो कनेक्टेड टू एफ, बट सी कनेक्ट नहीं है तुम्हारे के साथ कि बी के साथ, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड विद देम। फाइन। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी पॉइंट आएगा, according to probability point of view, which one will be communicate and which one will be sending the data and receiving the data. That is the informal way. In that cases also clustering chain, same thing, clustering cases भी वहां पे हो रहा है। ए कम्युनिकेट कर रहा है आपके बी ई सी डी को कम्युनिकेट कर रहा है, एफ को कम्युनिकेट कर रहा है, बट कौन सा पॉइंट कम्युनिकेट हो रहा है ये आपके पास डिटेल्स नहीं। मतलब सपोज मैं ए सी को कुछ डेटा शेयर कर रहा हूँ, वही डेटा बी को जा रहा है क्या? अगर वही डेटा बी को जा रहा है तो बी और सी में डिफरेंस क्या है कि अलग से कुछ डेटा चला गया, सपोज अलग से कुछ डेटा कम्युनिकेट हो रहा है ए टू बी और बी ए टू बी टू ई, दैट मीन्स ए बी को कुछ डेटा दे रहा है, बी ई को कुछ डेटा सेंड कर रहा है। अब ई के पास जो डेटा पहुंचेगा वो एक्चुअल ए का भेजा हुआ डेटा है क्या, कि ए जो डेटा भेजा है वो बी ई को सेंड किया है क्या एक्चुअल डेटा? they have lots of have a lacuna on that cases of the clustering chains. So these are the methods for informal cases to using that informal communication instead of we are using formal communication. Okay, in that cases we are arranging some conflict resolution. आपके resolution में क्या आएगा, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब आपका प्रॉपर स्टेप फॉलो हो रहा है कि नहीं, मतलब बॉस ने आपको कुछ बताया कुछ काम, आप ठीक तरह से उसको सुन पाए कि नहीं, ठीक तरीके से आप वो काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक पर्टिकुलर सक्सेस में एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, वो डिपेंड करता है। फाइन। मतलब सेकंड केसेस में क्या होगा, सेट ऑफ गोल्स। मतलब यहाँ पे चले जाओ, मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर जा रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ, सेट ऑफ गोल्स मेरा डिफाइन कुछ हुआ है। मतलब मैं सपोज मैं कर रहा हूँ एक्स फाइंड आउट करेगा वाई का डेस्टिनेशन पॉइंट, बट काम इस तरह से हो रहा है प्रोबेबिलिटी वाइज, तो फाइनल में मुझे नहीं पता चलेगा कहाँ तक काम कंप्लीट हुआ है। मतलब एक्स अगर वाई तक पहुंचेगा, उसका 7 सेक्शन है सपोज, बट कौन सा सेक्शन कौन ने कंप्लीट किया वो डेटा हमको हमारे पास नहीं।
वो डिपेंड करेगा। ये नहीं कि जो इनफॉर्मल में हमेशा आपका गलत आएगा, फॉर्मल में भी गलत आ सकता है। फाइन, दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं इन केसेस में। फाइन, द सेट ऑफ गोल कैन नॉट बी डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग्स। Third thing you will be stay with professional. Yes, in your professional workplace, you always stay in your professional. Do not discussion about your personal life. If you discussion that, then you face problem. Once a day, you face a problem. You maintain that stay with professional life. दैट मीन्स आप दो बंदे काम कर रहे हो, सपोज एक बंदा ने आपके साथ पर्सनल अटैचमेंट हो चुका है, तो आप कुछ काम उसको दे वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, कि आपके पास को बाईपास करके सेकंड वन को तो थर्ड वन को दे रहा है डेटा शेयरिंग, तो वहां पे आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो विथ वेरी मच यू हैव टू स्टे विथ प्रोफेशनल लाइफ देन मेंटेन दैट रिलेशनशिप। सेम लेवल में हो सकते हैं और डिफरेंट लेवल में भी हो सकते हैं। सिमिलर स्टे ऑफ न्यूट्रल्स, आप न्यूट्रल रहिए हमेशा काम करने में, नो टेकिंग नथिंग टू टेकिंग एनी स्ट्रेस वर्क, just do your work at proper time and proper way. That's all. Yes, you can do it, then do it. Even do not do, if not, then not. That's all. It's clear to say. No hesitate to saying yes or no. Yes, I do this. Then anything you will be check for the fact check. Fact check. एक्चुअल क्या होता है, कुछ प्रोसेस के लिए हम लोग को पता नहीं होता एक्चुअल उनका प्रॉपर फैक्ट क्या है उसका। Without knowledge of that particular things we are doing this, so then we are face some problem. So it is one of the conflicting arising, so I am getting not my conclusion, मैं अपने conclusion के ऊपर पहुंच नहीं पाता, that I have also demerit of that, that's why it will be going for the crisis। इसके कारण से आपका वर्किंग प्लेसेस में क्राइसिस आता है, कम्युनिकेशन इसको हम जो बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। फाइन, so in that cases we are defined that communication plays formal and informal cases, and that formal and informal cases we are discussion about that formal in vertical, horizontal, diagonal cases. Informal cases we are discussion about that uh, chain structure, cluster structure, probability structure. Okay, so these are the informal cases, and we are also be discussing about some conflict. What is the conflict will be arising? Active listening. Otherwise, you have a stay with your professionalities. Then set of the goals. Okay, you cannot find that particular things. So these are very interrelated. Your types of communication and workplace of the communication both are interrelated to each other. Fine. So now I'm relating with that point in business application. Okay. Now I'm relating with this business application. That business application, first class of to I am told to all of you that having that business application they have some supplier or human resource management, financial accounting management, or any customer or retailer management, all are present there. That means this thing customer and related also management, those are maintain their customer relationship management. So this part will be defined that the employee end, that will supply chain management, this part will be defined financial accounting management. These are the main bonds, main key points to define total e-based application. The application is that ERP model, enterprise resource planning. Enterprise resource planning also dividing into two things, that is the decision support making and enterprise application integration. इंटीग्रेशन कौन से पार्ट में होगा आपका, आपका मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस का। फाइन, then what are the decision support making will be defined, that decision support making is defined will be logistic, production and distribution, जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको डिफाइन किया जाए। ये चाहे तो क्वेश्चन रहेगा, इसमें फाइनेंस मैनेजमेंट रहेगा जिसमें आप लोगों का स्टेक होल्डर रहेगा, यहाँ पे आप लोगों का एम्प्लॉय रहेगा। बट in that cases here to define your whole business application model of architecture is that supply chain management is the top level, and bottom level you have a sales chain management where the customer and retailer all are present with the customer relationship and ERP model.
In between them, that the HR and financial will be present. Fine. So I am discussing about that enterprise resource planning. That enterprise resource planning, here I am define decision support and enterprise application integrated. So here I am integrated that customer employee like production planning, integrated logistic, accounting finance, HR, sales and distribution. These five things will be defined for this particular ERP model. One by one we'll check for that. First will be defined customer relationship management. In that customer relation management, what are the objective of this customer relation management? The first objective, that customer service support. First thing, customer service support. Then we are going for that their front of field services, स्टोर फ्रंट एंड फील्ड सर्विसेज. जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट आता है ऑनलाइन सिस्टम में, कोई भी प्रोडक्ट में डैमेज है, तो आप लोग इमीडिएटली रेफर करते हो कस्टमर. फाइन. उसका कोई भी आपका फोटो वगैरह आपको देते हो, प्रोडक्ट इज वेरी डैमेज, सो रिटर्निंग माय फंड, अदरवाइज इट विल बी गो फॉर द रिप्लेस इट. If it is available in the store, then it will be replaced, otherwise it will be returning the money. Fine. Then second thing is your retention and loyalty of the program. Yes, ये loyalty and retention रहना चाहिए. अगर आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, आप अगर कंप्लेन दे दो, उसमें वहाँ पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपका जो कंप्लेन का, तो इट इज lacuna of that. Fine. Then second thing is marketing. Marketing is the very vital role for any online system product, for any product or project. आपका marketing रहना चाहिए, और marketing जितना strong होगा, कुछ लोग उसको देख के चले आएंगे करने के लिए. आपका प्रोडक्ट क्या यूजफुल है, क्या नॉट यूजफुल नहीं है, वो उसमें कोई पता नहीं चलता, बट लोग उसको देख के चले आएंगे करने के लिए. उस तरह से कोई मार्केटिंग हो रहा है. फाइन. लास्ट में आप लोगों का सेल्स रहेगा, क्रॉस सेल्स रहेगा, ऑफ सेल एंड टेल सेल. टेलीकम्युनिकेशन सेल्स, क्रॉस सेल्स डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर. फाइन. दैट कस्टमर दैट विल बी with their customer service. These are these 5 points or 5 objective to define in your customer relationship management. Next, supply chain management. That supply chain management divided into three things. One is the life cycle model, another is the process functional models, another is the integrated solution. This life cycle model we have decided commit, scheduled, make and deliver. मैं कमिट क्या कर रहा हूँ, शेड्यूलिंग क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और डिलीवर क्या कर रहा हूँ. बट प्रोसेस में हम लोग का क्या रहेगा, दोनों केसेस में आएंगे. ऑर्डर कमिट क्या रह रहा है, उसके हिसाब से आपका एडवांस शेड्यूलिंग बनाएंगे ऑर्डर कमिट के हिसाब से. उसके हिसाब से डिमांड प्लानिंग क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसके साथ हो रहा है कि नहीं, प्लानिंग स्ट्रक्चर. क्योंकि प्रोसेस में आप लोग का पूरा डिफाइन होगा, क्योंकि आप लोग बिलोंग्स करते हो लॉजिस्टिक के ऊपर. लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिपेंड करते हो. उसी के हिसाब से आपका मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस डिपेंड करता है. Fine. So in that particular cases, that you have to go for then you are integrated your work in supply chain. The last things. Fine. So next you have that tools. What are the tools, particular tools we are using? We are using these electronics communication tools, conferencing tools, collaborating work of management tools. Like electronics tools, we are using emails, voicemails, phones, web publishing, fax. These are the points. Electronic communication. Electronics conferencing means data conferencing, voice conferencing, video conferencing, decision forum, electronic meeting. These are the electronics conferencing tools we are using that. Fine. Next, collaborating work, that should be have a, there should be tax or project manager. ये आपका मैनेजमेंट का टूल्स होता है. नॉलेज मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, पर्टिकुलर वर्क फ्लो में, ये आप लोग को सब पता होगा. ठीक है, आपको डिटेल्स यहाँ पे पता होगा. कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं आप लोग, काम करते हैं ना रिलेटेड टू योर वर्किंग फील्ड, तो आप लोगों को पता हो. फाइन. नेक्स्ट, दिस इज द फंक्शनल ऑफ द बिजनेस इन्फॉर्मल सिस्टम. मेन फंक्शन क्या है, वही फंक्शन आप लोगों का आएगा. फंक्शन में आप लोगों का मार्केटिंग रहेगा, एचआर रहेगा, प्रोडक्शन रहेगा, अकाउंटिंग रहेगा, फाइनेंस रहेगा. ये दिस आर 5 bones to your functional of the business information system.
ये आपका कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड होता है, ई बिजनेस एप्लीकेशन। फाइन। तो मार्केटिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप लोगों का आ रहा है, दैट विल बी इंटरेक्टिव पोजीशन के केसेस आ रहा है, सेल्स का आ रहा है। देन आपका सेल्स एंड इंटरेक्टिव केसेस में आप लोगों का मार्केटिंग रिसर्च, फोरकास्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, their customer relation with the sales manager. That means here is 1 2, this is 3 and 4, that have defined again 5. That means your marketing system directly connecting with their marketing research, advertisement research, promotion and production research. That means here it will be defined vertical communication up, but downward not possible. So upward is not possible, only downward cases. Fine. Otherwise, I am saying that if I am writing here marketing place, marketing information system, if I am writing to connecting this way, this is the horizontal communication. Fine. So in that cases, we are going for the target marketing. Okay. टारगेट मैटिंग वहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन बिहेवियर कॉन्टेक्ट सेल्स कम्युनिटी आप पे डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप लोगों का भी कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, रिमोट टू सप्लायर में आप लोग कैसे यूज करते हो, आपका अगर टूल्स वगैरह कुछ होता है, कार्ट, CSC, कंप्यूटर एडेड प्रोसेसिंग, कोई फ्लोर बाय शेड्यूलिंग, मशीन कंट्रोल, दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, रिसोर्स एग्जीक्यूशन एंड योर इंजीनियरिंग सिस्टम मॉडलिंग। फाइन। ह्यूमन रिसोर्स में आप लोगों का स्टाफिंग आएगा, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, these are the known points, these are the known points, that is not about any discussion point, these are the known points. Okay. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सेम थिंग, आप लोग कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे अकाउंटिंग करते हैं, मतलब आपका बिलिंग सेक्शन कैसे होता है, ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, उसका बिल कैसे होता है, उसका सेल्स एनालिसिस कैसे रहता है, मंथली वाइज, डे वाइज, मंथली वाइज, योर ईयर वाइज, फाइनेंशियल ऑडिट कैसे होता है, दीज आर द स्ट्रक्चर एंड मेथड्स। ओके। Then financial management, same thing, cash management, investment management, capital budget and financial. These are the modeling of the financial. Okay. So I'm just skip this slide. Now I'm coming from this uh, e-commerce ब्राउजिंग, दिस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड। ये आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड कैसे होता है। जैसे वी आर डूइंग एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड दैट शुड बी बाय थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, UPI पेमेंट मेथड्स। ओके। e-commerce source factor, these are the skip part, you know everything. Okay. So we are concluding that where the communication point, type of communication point and workplace of communication point will be defined here. Our type of communication will be defined in these cases of that verbal and non-verbal communication with the attaching with the formal and informal, and we are attached here how it will be interrelated with your e-business application. Okay. So from this thing will be stop the class. Any doubt or any question? Hello. No, sir. Okay. So tomorrow we will just complete that your long process method and long business method and short business method, how to writing or report writing cases, and other later method will be able to discussing the to concluding the classes. Okay. Okay, sir. Sir, can Yes. you give the sliders on the group? Yes, I will send after. I think today is the 12, Yes, sir. 12th January. Tomorrow is 13th January, the last class. Okay. Okay, sir. Okay, By sir. Monday, I will be sharing your group. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Good night, sir.